Hello everyone, welcome to session. So today we're going to start with the time, speed and distance. This is the part 1 session, and these are the topics that we're going to cover under time, speed, distance. That first is the equation of d equal to st, distance equal to speed into time, and then we're going to see all the variants of this, like when distance is constant, when speed is constant, when time is constant. We're going to see average speed, relative speed. We're going to see train, boat and stream, escalator and races. And one more topic is there, like that is also, if you see, concepts are under the time, speed, distance itself, that is clocks. But clocks we'll do in a separate session, so that will take, I think, one session, so we'll be able to understand the clocks. Okay, so these are the topics that we're going to cover. So let's get started. First, start with the d equal to st equation. And I hope you have watched, I have told you many times that like profit loss, your TSD, your SICI, and like your clocks, time and work. These are the concepts. These are the like application part of these concepts, that are percentage, ratio, proportion, average, alligation, mixture. है ना, जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनका ये एप्लीकेशन है, प्रॉफिट लॉस, TSD. And so it's very important you cover these basics that I have covered. So make sure you have watched those classes. Then it will be easier to understand these sessions. Otherwise, you'll be not able to understand. Lot of time I will be using very precise method, very basic concepts, and I will be able to solve question very faster. But you will not be able to understand because your basics are not clear, because your percentage concept, because your ratio concept is not clear. Fine. So make sure you watch this video, that is percentage, ratio, alligation, mixture, averages, and all these basic concept. Make sure you watch them multiple times. Even I would recommend, if you not get clarity at once, multiple times, do multiple practice, do a lot of questions on them, and so that these topics are easier. Believe me, like people found that profit loss, TSD, time and work, these are the difficult topics, but these are not difficult topics. Generally people focus directly on these topics. That is the problem. If your concepts are strong, if your basics are strong, your percentage, ratio, proportion, averages, these things are strong, then these concepts will become very easy. Otherwise, if you just directly try to learn profit loss and time, speed, distance, or time and work, you'll find it difficult to understand. Fine. I hope this thing is clear before we start with the time, speed, distance, because it is one of the important part if you see in the con section itself, not only in arithmetic, because you can expect 2 to 3 questions from this topic. Fine. Okay, so let's understand. And so like if you remember in the percentage itself, I have explained this equation, this type of equation, how it varies, like when speed is constant, what will happen with time, है ना? We have done these type of things. So let's get started. First thing, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, so I just want to sort it at once, है ना? मैं जस्ट एक बार में चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ. I want you guys to remember this thing, memorize this thing, and don't unnecessary waste time in your examination. ठीक है? So this will take save your time in the examination. Conversion from kilometer to meter per second बहुत बार आएगा. So if you remember these two things, you'll be like sorted. तुम्हारे like 10 to 15 सेकंड easily बच जाएंगे. Okay. So अगर किलोमीटर पर आवर से तुम्हें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, you need to multiply the given data by 5/18. Suppose तुम्हें एक स्पीड दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर and you want to convert into मीटर पर सेकेंड. तो जनरली कैसे करते होगे? 36 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60, है ना? इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस थिंग, इसी को कैंसिल आउट करके 5/18 आता है. सो जस्ट मल्टीप्लाई विथ 36 इंटू 5/18, यू विल गेट द स्पीड इन मीटर्स पर सेकेंड. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. ये नोट डाउन कर लो. एंड सिमिलरली सपोज ए स्पीड इज गिवन, लेट्स से 35 मीटर पर सेकेंड, एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर. सो व्हाट यू विल डू? मल्टीप्लाई विथ 18/5. तो 18/7 आई थिंक होता है, 18/7 126. जो भी मल्टीप्लीकेशन आ रहा हो, दैट विल बी योर आंसर, किलोमीटर पर आवर. ओके, सो रिमेंबर दीज टू कन्वर्जन्स, 5/18 एंड 18/5. 5/18 व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर. अब इसको याद करने के तरीके तुम सोच सकते हो. मैं तुम्हें एक ट्रिक बता दूं, लाइक जो मुझे वैसे भी कंफ्यूजन हो जाता है, अगेन स्टिल तुम ऐसे सोच सकते हो कि जब तुम्हें मीटर में कन्वर्ट करना हो, एक बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लिकेशन तुम्हें छोटे से करना है. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तुम्हें छोटे से करना है. जब छोटी यूनिट से एक बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हें मल्टीप्लिकेशन एक बड़े से करना है. ठीक है, तो ऐसे इसको याद कर सकते हो. ओके,
डी इक्वल टू एस टी इक्वेशन। तो जनरली तुम्हें लाइक बुक्स में और अभी तक ज़्यादातर तुम्हें ये इक्वेशन यूज़ की होगी, मतलब है सेम ही इक्वेशन, बोथ आर द सेम इक्वेशन, बट व्हाट आई फाउंड इट इज़ इजियर टू डील इन दिस मैनर, है ना, बिकॉज यू विल नॉट, अगर तुम कैलकुलेशन करो इक्वेशन में एक्स अपॉन 5 प्लस वाई इक्वल टू 3, इस इक्वेशन के कंपेरिजन में दिस इज इजियर टू डील विद दिस इक्वेशन। आई होप यू गाइस विल एग्री, इस इक्वेशन में डील करना आसान होता है। सो दैट्स व्हाई आई वुड रिकमेंड ऑलवेज ट्राई टू यूज दिस इक्वेशन इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस इक्वेशन, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम, यूज दिस और दिस, बोथ एवरीथिंग इज सेम, है ना, लाइक कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट these आर द वेज इन विच यू सिंप्लीफाई योर कैलकुलेशन। मैं हमेशा फोकस करता हूँ हाउ यू कैन सिंप्लीफाई योर कैलकुलेशन, सो दीज आर द वेज दैट विल ट्राई टू लाइक मेक सिंपलर योर कैलकुलेशन, है ना। तो कोई तो कैलकुलेशन अगर तुम्हारी सिंपलर होंगी तो कैलकुलेशन एरर कम होंगे, तो जो सिली मिस्टेक्स होते हैं वो कम होना जाएंगे, ठीक है। तो इस पे देखो, अभी हम डिटेल में बात करते हैं कि एक इक्वेशन जब लाइक डी कांस्टेंट होता है तब क्या होता है, वो सारी बातें करेंगे। अभी के लिए बेसिक से क्वेश्चन देखते हैं कि लाइक जिसमें ऐसा कुछ कांस्टेंट नहीं है, है ना, सिंपलर क्वेश्चन देखते हैं। एंड ऑल द क्वेश्चंस आई विल बी नॉट यूजिंग एनी रेशियो कॉन्सेप्ट, आई विल बी नॉट यूजिंग एनी शॉर्टकट, ठीक है। आई विल बी जस्ट यूजिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स, एंड दीज आर गोना बी द बेस्ट मेथड। बिलीव मी, तुम कहीं से भी चेक कर लेना, जो भी मेथड में यूज करने वाला हूँ, वेरी बेसिक मेथड, सब बेसिक का ही यूज होगा, नथिंग शॉर्टकट, नो एनीथिंग एल्स, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, एंड दिस गोना बी वेरी फास्टेस्ट मेथड। तुम कोई भी मेथड जाके चेक कर लेना, एंड व्हाट आई एम गोना टेल यू हियर, दोज गोना बी द फास्टेस्ट मेथड टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। Ramesh travels three distances in ratio 1:2:3 at a speed of 40, 30 and 40. If total time taken is this much, find the total distance covered. So Ramesh थ्री डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है एंड डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है, डिस्टेंस का रेशियो दिया, तो लेट्स से दिस इज x डिस्टेंस, दिस इज 2x डिस्टेंस, दिस इज 3x डिस्टेंस, फाइन। स्पीड ऑफ 40, तो आई थिंक यहाँ पर रिस्पेक्टफुली लिखा होना चाहिए था, ठीक है, तो ये इसके रिस्पेक्ट में है, ठीक है। वन वाला जो x डिस्टेंस है वो इस स्पीड से ट्रेवल करता है, एंड जो 30 इस स्पीड से, एंड ये इस स्पीड से। तो इससे क्या निकला है, मैंने क्या किया, डिस्टेंस मैंने x लिया, 2x लिया, 3x लिया, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन मैंने स्पीड किया, तो हमें क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा, इसको ऐड कर दो, सिंपल, इसको ऐड कर दो, सिंपल। सो एवरीथिंग इज मीटर पर सेकेंड, दिस इज ऑल्सो इन मिनट, दिस इज इन मिनट, सो यू नीड टू कन्वर्ट इनटू इन सेकेंड्स, मल्टीप्लाई कर दोगे। अब जस्ट कैलकुलेशन करना, x की वैल्यू आ जाएगी, देन इसको जो भी x की वैल्यू आ जाएगी, आंसर विल बी 6x। टोटल डिस्टेंस कितना है, x 2x प्लस 3x दैट इज 6x, x की वैल्यू पुट कर दोगे, यू विल गेट द आंसर। तो डू द कैलकुलेशन, आई एम लीविंग कैलकुलेशन टू यू गाइस। राम ट्रेवल्स फॉर 3 स्ट्रेचेस ऑफ टाइम इन रेशियो 1:2:3। अब देखो यहाँ पर टाइम का रेशियो दिया हुआ है, देयर टाइम इज इन द रेशियो, है ना, और स्पीड दी हुई है। इफ अ कवर डिस्टेंस, डिस्टेंस टोटल दी हुई है, फाइंड द टोटल टाइम, टोटल टाइम फॉर इच राम इज ट्रेवलिंग। ओके, तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन बना लेंगे। अब ये देखो क्या टाइम दिया हुआ है t, और इतनी स्पीड से, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 20 इंटू टी, 20 इंटू टी, एंड देन आई विल मल्टीप्लाई 30 इंटू 2t एंड 40 इंटू 3t, ठीक है, दीज आर द थिंग। तो ये देखो क्या है, दिस इज द डिस्टेंस ना, दिस इज द पार्ट 1, दिस इज द पार्ट 2 डिस्टेंस, दिस इज द पार्ट 3 डिस्टेंस। टाइम में, टी टाइम में उसने इतनी डिस्टेंस कवर की, अगर टी टाइम में वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है, तो डिस्टेंस कितना होगा, 20t। ऐसे ही ये सब, टोटल डिस्टेंस कितना, 100। स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और ये भी किलोमीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको ऐड कर लो, 20t, 60t, 120t, दैट इज 200t। तो t इज हाफ, मीन्स हाफ एन आवर, टाइम निकल आया। अब निकालना क्या, टोटल टाइम, तो अगर t की वैल्यू इतनी, टोटल टाइम कितना होगा, 60 है ना, 60, तो 6 इंटू हाफ दैट इज 3, सो टोटल टाइम इज 3 आवर, इजी। If Ram travels 20 to 40 kilometers in 8 hours, in which he travels at
36 kilometer per hour for some time and remaining time at 20 kilometer per hour. Find the distance traveled by Ram. I think I might have covered this question in allegation. I might have covered. I didn't remember. I might have covered. Anyway, तो इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में देखो, एक तो बेसिक मेथड से कर सकते हो, टोटल टाइम टोटल निकाल के सारी चीजें कर लो, है ना, बट अदर थिंग यू कैन अप्लाई एलिगेशन हियर. कैसे? अब देखो, इस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है 36 से, और इस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, दो स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, एंड एवरेज स्पीड कितनी है? देखो एवरेज स्पीड यहाँ से निकल आएगी 240 अपॉन 80, दैट इज 30 एवरेज स्पीड हो गई. इस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, इस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, और इन दोनों को मिक्स करके स्पीड इतनी आ रही है 30 किलोमीटर पर आवर ओवरऑल. तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा, दैट इज 10, दैट इज 6, तो दैट इज 5:3. अब इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ध्यान रखना है तुम्हें, ये जो 5:3 रेशियो है, दिस इज द रेशियो ऑफ टाइम. दिस इज द रेशियो ऑफ टाइम, नॉट डिस्टेंस, नॉट स्पीड. ये चीज याद रखनी, ये मिस्टेक हो सकती है. दिस इज द रेशियो ऑफ टाइम. क्यों? जो एलिगेशन में रेशियो आता है वो तुम्हारा जो यूनिट होती है उसके जो डिनोमिनेटर में होता है वो उसका रेशियो आता है. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में तुम्हारा आवर है, तो यहाँ पर टाइम का रेशियो आएगा. ठीक है, तो ये याद रखना. तो टोटल टाइम इतना था, टोटल टाइम इतना था, तो 538 आ रहे ना, तो ये डिस्टेंस 5 आवर्स के लिए, ये डिस्टेंस 3 आवर्स के लिए ट्रेवल की गई है. डिस्टेंस तुम्हें बताना है 36 से, तो 36 इंटू 5 आवर्स के लिए, दैट इज 180 इज द आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. अगेन इस क्वेश्चन को तुम बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, बट दैट विल टेक टाइम. वो अपने आप करके देख लेना. अगेन आई एम टेलिंग, वट एवर अप्रोचेज आई एम टेलिंग, वो तुम्हें सीखनी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो बेसिक कैलकुलेशन करते हैं ना, कि लाइक डी एज्यूम करके, टी एज्यूम करके, आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा वो भी ट्राई करो. दैट यू विल ट्राई टू गेट द क्लैरिटी की चीजें हो कैसे रही. ठीक है, आई कवर अ टोटल डिस्टेंस ऑफ दिस, पार्टली एट दिस, पार्टली एट दिस. इसका मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताना. ठीक है, सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो आंसर इन द कमेंट सेक्शन विद द स्लाइड नंबर. स्लाइड, क्योंकि सेम क्वेश्चन है. देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कुछ टाइम के लिए इस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, कुछ टाइम के लिए इस स्पीड से. तुम्हें टाइम बताना है तो डायरेक्ट ही है. यहाँ पर तो एक स्टेप आगे जाके तुम्हें डिस्टेंस निकालना था, यहाँ पर तो डायरेक्ट बस ये एलिगेशन लगा के यू हैव टू फाइंड द टाइम. जस्ट डू दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन विद द स्लाइड नंबर. स्लाइड नंबर के साथ मुझे आंसर बताना. ठीक है, these were the very basic questions. Now let's start with the concept where d is constant. Where d is constant. ठीक है, again I'm recalling you, percentage में I have explained it many times. I will be again explaining here many times, but it's important you to understand it properly. ठीक है, so d equal to st. तो ऐसी इस टाइप की बहुत सारी इक्वेशन होती है ना, लाइक मैं तुम्हें रेवेन्यू वाली बताई होगी, टाइम एंड वर्क में भी ये इक्वेशन आएगी, है ना. Okay, so d equal to st if your distance is constant, if your distance is constant, and similarly like your area का भी होता है ना, area of rectangle length into breadth होता है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, अगर तुम्हारा डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस इज कांस्टेंट. अगेन अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाली चीजें आ जाएंगी, तो ध्यान से. अगर तुम्हारा स्पीड इंक्रीज करेगा, इफ योर डिस्टेंस इज कांस्टेंट, अगर तुम्हारा स्पीड इंक्रीज करेगा तो टाइम को डिक्रीज होना पड़ेगा. सेम, अगर सपोज तुम 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो 20 की स्पीड से, 20 की स्पीड से, तो तुम्हें कितना 5 आवर लगेगा. अगर तुम अपनी स्पीड को इंक्रीज करके 25 कर दो तो तुम्हारा टाइम डिक्रीज कर जाएगा. आ गया समझ में? योर टाइम विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा. अगर तुम स्पीड को डिक्रीज कर दो तो टाइम इंक्रीज कर जाएगा. कैसे? 100 किलोमीटर है, अगर स्पीड को मैं 10 कर दूं तो टाइम कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. टाइम बढ़ जाएगा, 4 से 10 हो जाएगा. सिंपल, सिंपल सी बात है, होप सबको समझ में आ रही होगी. अब देखो कैसे इसको डील करना है. ये अगेन मल्टीप्लाइंग फैक्टर परसेंटेज में एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं फिर से तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं. तो अब इसमें देखो क्या होगा, अब तुम्हें स्टेटमेंट ऐसा दिया होगा कि स्पीड सपोज तुम्हारी, एक तो देखो दो तरीके से स्टेटमेंट होंगे. एक तो तुम्हारी स्पीड पहले जो थी उसका सपोज लेट से 3/4 हो गई. पहले सपोज x किलोमीटर पर आवर थी और अब तुम्हारी स्पीड 3/4 हो गई है. स्पीड बिकम्स 3/4 ऑफ इनिशियल, 3/4 हो गई. तो टाइम पे इसका कितना चेंज आएगा? टाइम विल इंक्रीज और डिक्रीज बाय हाउ मच? तो इसका सिंपल सा, अगर देखो, अगर लाइक x स्पीड है और लाइक अगर सेम एग्जांपल हम लेते हैं, लाइक 100 है अगर ये, और ये 20 था और ये 5 था. अब अगर मैं कह रहा हूँ कि स्पीड जो तुम्हारी है ये 3/4 हो जाए, ये 3/4 हो जाए, 20 की जगह 3/4 हो जाए,
20 का 3/4 हो जाए, है ना। तो 3/4 कितना हो गया, 15 हो गया ना, 15 हो गया। तो इस पे क्या चेंज आएगा, अब ये बढ़ेगा ना, कितने से बढ़ेगा वो भी देख लो, कितने से बढ़ेगा। ये सिंपल, इसको कैंसिल आउट करने के लिए 4/3 हो जाएगा, नथिंग एल्स। इसको कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पर इंटीजर आंसर नहीं आएगा, है ना, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, बट इसको कैंसिल आउट करने के लिए सिंपल ये 4/3 होगा, ऐसे समझ लो। चलो इसको हटाते हैं, ऐसे समझ लो, अगर ये डी है, अगर मैं स्पीड को 3/4 कर दूं, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए टाइम को 4/3 करना पड़ेगा, बोलो, तभी तो कैंसिल होकर डी इक्वल टू एस टी रहेगा, है ना। अगर ये 4/3, अगर तुम्हारा स्पीड 3/4 हुआ है तो तुम्हारा टाइम 4/3 हो जाएगा। अगर टाइम 4/3 हुआ है तो इसका क्या मतलब है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना 4/3। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो होता है जिससे मल्टीप्लाई किया हो, दिस इज मल्टीप्लाइड विद द टाइम, है ना, ये इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/4। तो अगर 4/3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो क्या है, इंक्रीज है कितने का, 1/3 का, 1/3 का इंक्रीज है, 33.33% का इंक्रीज है, 33.33% का इंक्रीज है। और अगर ये देखो, ये दिया हुआ है तुम्हें मल्टीप्लाइंग फैक्टर कि इतना हो गया है। अदरवाइज यहाँ पर अब देखो दूसरी तरीके से दे सकते हैं इसी क्वेश्चन को, एक तरीका मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्यों बोलेंगे कि तुम्हारी जो स्पीड है या टाइम है ना, स्पीड तुम्हारी सपोज 3/4 हो गई, पहले जो थी उसका 3/4 हो गई है, पहले एक्स थी अब 3/4 एक्स हो गई है। तो टाइम तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4/3 एक्स, 4/3 t, टू कैंसिल आउट दिस थिंग्स, टू कैंसिल आउट दिस चेंज, और दीज आर द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो अब ये 4/3 जो है, इसका मतलब है कितना, 1/3 का इंक्रीज। एक तो ये तरीका। अब देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अब इसी को मैं ऐसे बोलूं, अगर मैं बोलता हूं कि तुम्हारी स्पीड जो है डेट इज डिक्रीज्ड बाय 1/4, तुम्हारी स्पीड 25% से डिक्रीज कर गई है, आ रहा है समझ में, स्पीड 25% से डिक्रीज कर गई है। यहां पर डायरेक्ट दिया होता 3/4, बट यहां पर बोला दूसरा प्रोसेस जो तरीका देने का है, दिस इज द फर्स्ट वे, द सेकेंड वे। इसमें बोला है कि स्पीड डिक्रीज्ड बाय 1/4, दोनों में डिफरेंस समझो, एक में बोला कि स्पीड 3/4 हो गई है, सेकेंड इट इज सेइंग स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 1/4, स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 1/4। दिस इज नॉट योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दिस इज योर इफेक्ट, दिस इज योर चेंज। तो स्पीड इज डिक्रीज बाय 1/4, तो अगर 1/4 से डिक्रीज हो गई तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी, सेम चीज आ जाएगी, है ना? तो अगर ऐसा दिया हुआ है, तो अगर स्पीड तुम्हें इससे डिक्रीज कर रही होगी, अब रिकॉल करो अगेन परसेंटेज में, अगर डी इक्वल टू एस टी ऐसी इक्वेशन है और ये चीज 1/4 से डिक्रीज कर रही है, दूसरी चीज इंक्रीज करेगी कितने से, 1/3 से, कैसे, वो मैंने बता रखा है तुम्हें, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे, ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आ गया। अगर ऐसे दिया होगा तो ये चीज होगी, ऐसे दिया होगा तो ये होगा, बट फाइनली कैसे कैलकुलेट करोगे उस पर बात करते हैं। अब सपोज बोला गया कि तुम्हारी स्पीड जो है डेट डिक्रीज बाय 1/5, या फिर 20% से तुम्हारी स्पीड डिक्रीज कर जाती है, तो टाइम कितने से इंक्रीज करेगा, कैसे निकालोगे। तो मैंने बताया था जो लाइक ये चेंज होता है कैसे निकालते हैं, अगर डी इक्वल टू एस टी इक्वेशन है, अगर इसमें एक में सपोज स्पीड में a/b से डिक्रीज है, तो दूसरा इंक्रीज करेगा, ये बात क्लियर है, कितने से इंक्रीज करेगा, a/a-b, इतने से इंक्रीज करेगा। अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज करेगा कितने से, a/a+b से। आई होप यू रिमेंबर गाइस दिस थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द परसेंटेज, ठीक है, तो नोट डाउन कर लो अगर जिसने परसेंटेज ना देखा हो, ठीक है, नोट डाउन कर लो, बट मेक श्योर परसेंटेज देख लेना, ठीक है। तो अब ये देखो बोल रहा है कि 1/5 से अगर डिक्रीज कर जाता है तो दूसरी चीज इंक्रीज करेगी कितने से, ये वाली इक्वेशन, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो 1/5 - 1 डेट इज 1/4 से इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर स्पीड तुम्हारी 1/5 से डिक्रीज की है तो 1/4 से टाइम इंक्रीज कर जाएगा, सिंपल, ये चीज ऐसे करने की। अब देखो जो पहला वाला सिचुएशन था, पहले वाली सिचुएशन से डायरेक्ट दे दिया था 3/4 से डिक्रीज कर जाएगी, नहीं डिक्रीज नहीं 3/4 हो जाएगी, योर स्पीड विल बिकम 3/4x, पहले x थी अब 3/4 हो जाएगी, है ना। अभी मैंने बोला कि 1/4 से डिक्रीज करेगी, बट यहाँ पर डिक्रीज नहीं कर रही, यहाँ पर 3/4 हो जा रही है, डायरेक्ट तुम्हें चेंज दिया हुआ है। तो इसमें एक काम ये कर सकते हो कि लाइक तुम क्या करो, 3/4 है तो यहाँ से तुम निकाल लो कितने का डिक्रीज है, 1/4 का डिक्रीज है, तो दूसरी चीज इंक्रीज करेगी कितने से, 1/3 से, ऐसे कर सकते हो। या फिर जो मैंने बताया 4/3 डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, कैंसिल आउट करके, कैसे भी कर सकते हो। आई फाइंड दिस इज द बेटर वे। अगर 3/4 कर दिया गया तो वहां से निकालो कितना डिक्रीज है,
1/4 का डिक्रीज है तो दूसरी चीज इंक्रीज करेगी कितने से, 1/3 से। ठीक है, ओके, मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया, पूरी चीज परसेंटेज में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है। ओके, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन कितनी आसानी से हो जाएंगे। ट्रेवलिंग एट 5/5 of his usual speed, a man is 10 minutes late. What is the usual time he takes to cover the same distance? तो डिस्टेंस तो वही कांस्टेंट है, इक्वेशन है ये। अब बोला कि 5/6 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, तो यूजुअल स्पीड सपोज x थी, अब स्पीड हो गई है 5/6 x, है ना। अब मैन इज 10 मिनट लेट, 10 मिनट लेट है। अच्छा, अगेन ये क्वेश्चंस तुम इक्वेशन लिख के अज्यूम करके सब कुछ करके सॉल्व कर सकते हो, बट दैट विल टेक टाइम, वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन फास्टर। तो ये चीज़ तुम्हें समझनी होगी, ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम इतना हो जाएगा, सिंपल, टाइम इतना हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। तो इसमें देखो कितना चेंज है, 1/5 से टाइम इंक्रीज कर रहा है, 5 तुम्हारा टाइम तुम्हारा 1/5 से इंक्रीज कर रहा है, एंड दिस इंक्रीज इज इक्वल टू 10 मिनट डिले, दिस इंक्रीज इज इक्वल टू 10 मिनट डिले, दैट इज 50 मिनट्स। तो उसे जो एक्चुअल टाइम लगता था दैट वाज 50 मिनट। दिस इज द वे। दूसरा तरीका, लाइक सेम ही चीज मैं बता रहा हूँ, बस तुम्हें दूसरे हर तरीके से एक्सप्लेन करूँ। लाइक 5/6 से स्पीड है ना, यूजुअल स्पीड के 5/6 से कर रहा है, तो मतलब कितने का डिक्रीज है स्पीड में, 5, पहले x थी अब 5/6x हो गया, तो डिक्रीज कितने का, 1/6 का डिक्रीज है। तो अगर ये 1/6 का डिक्रीज है तो दिस विल इंक्रीज बाय 1/5, एंड दिस इंक्रीज इज इक्वल टू 10 मिनट, दैट इज 3 मिनट्स। क्लियर। A person saves 6 minutes by increasing his speed by 25%. What is the time taken to cover the distance at his usual speed? So D equal to ST is again, अब अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है 1/4 से। अगर स्पीड 1/4 से इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज है, ठीक है, ये 1/4 हो नहीं रही है, इंक्रीजिंग बाय, ठीक है। तो अगर 1/4 से इंक्रीज कर रही है तो टाइम डिक्रीज करेगा कितने से, 1/5 से, एंड दिस डिक्रीज 1/5 saves time of 6 मिनट, सो दैट इज 30 मिनट। तो उसे जो नॉर्मल टाइम है वो 30 मिनट लगता है। अगेन मैं एक्सप्लेन करूं, अगर तुम्हारी स्पीड 1/4 से इंक्रीज करेगी, टाइम डिक्रीज करेगा कितने से, 1/5 से। अब ये तुम्हारा टाइम कितना डिक्रीज हो गया, पहले t था, अब t/5 डिक्रीज हो गया है, t का t/5 डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज्ड बाय दिस मच, ठीक है। तो दिस डिक्रीज इज इक्वल टू 6 मिनट, बोला है कि 6 मिनट सेव हो जाते हैं, एंड इसको इक्वेट कर दोगे, यू विल गेट आंसर इक्वल टू 30 मिनट। Over a certain distance, if the speed has been 10% more, by how much percent less would taken the time be? तो अगर सेम डिस्टेंस के लिए तुमने ट्रेवल किया, सपोज अगर स्पीड तुम्हारी 10% मोर होती, 1/10 ज़्यादा होती, तो टाइम कितना सेव कर लेते हैं, तो टाइम बचेगा, कितना बचेगा, 1/9, है ना। टाइम रुको रुको, तुम्हारा स्पीड इंक्रीज हुआ है, स्पीड इंक्रीज हुआ है तो टाइम डिक्रीज करेगा, डिक्रीज के लिए ऐड करते हैं ना, ए प्लस बी करते हैं, तो दिस विल डिक्रीज, योर टाइम विल डिक्रीज बाय 9.09%. If a man travels at 3/7 his original speed, he reaches his office 12 minutes late. Calculate the actual duration. Again, similar question. Solve this and let me know your answer in the comment section with slide number 50. Same question है देखो, 3/7 of original speed, 15 minute delay, 5/6, same question है. Just let me know your answer in the comment section with the slide number. अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पर। ये थोड़ा ये काफी इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड इट केयरफुली। अगर तुम्हें कोई डाउट आता है तो मुझे बताना। देखो क्या हो रहा है, सैम कवर्स अ डिस्टेंस विद a km/h and come back with b km/h. If it takes total t hours to go and come back, find the distance. So let's take Sam is covering this distance, this d distance. Suppose Sam is covering this d distance and he goes with a speed of a km/h and reaches this point and again come back at b km/h speed. इस स्पीड से रिटर्न करता है, and for this process take total t hour, like यहां से यहां तक जाने में और फिर रिटर्न आने में टोटल टाइम जो है दैट इज टी आवर्स, तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस इक्वल टू अगर डिस्टेंस देखो तो टोटल डिस्टेंस 2t कवर किए,
टोटल डिस्टेंस कितनी, 2D कवर की, एक बार D गया और एक बार वापस आया, ठीक है। अब स्पीड, अगर हम एवरेज स्पीड निकालें और टोटल टाइम मल्टीप्लाई कर दें, निकल आएगा एवरेज स्पीड और टोटल टाइम। एवरेज स्पीड में जब पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा, बट अभी मैं तुम्हें डायरेक्टली बता रहा हूँ, लिख लो, अभी समझ लो, अभी जस्ट देख लो कैसे होता है, अभी जस्ट फॉर्मूला देख लो, आगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो एवरेज स्पीड तुम्हारी ये होती है 2ab/a+b। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो एवरेज स्पीड तुम्हारी होती है दोनों स्पीड का हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन जिसे नहीं पता है कोई बात नहीं है, डोंट नीड टू वरी, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि अगर तुम्हारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है और तुम स्पीड से कुछ दो स्पीड से कवर करते हो, ये डिस्टेंस तुमने सेम डिस्टेंस डी डिस्टेंस ए स्पीड से कवर किया, फिर तुमने डी डिस्टेंस बी स्पीड से कवर किया, देन जो एवरेज स्पीड होगा टोटल जर्नी के लिए दैट विल बी 2ab/a+b and this is called the harmonic mean. So harmonic mean of AB will be the average speed. तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस हमें निकालनी है दैट इज 2D एंड एवरेज स्पीड से मल्टीप्लाई कर दे और टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दे, इक्वेशन बैलेंस रहेगा। तो एवरेज स्पीड यहाँ पर इतनी हुई 2ab/a+b, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये फॉर्मूला आ गया। तो दिस इज द फॉर्मूला। नाउ रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस विल हेल्प अस टू सॉल्व क्वेश्चन मच फास्टर। देखना बहुत सारे क्वेश्चन जो तुम्हें बुक में डिफिकल्ट दिए होंगे, लाइक पता नहीं लोगों ने कैसे कैसे सॉल्व कराए होंगे, विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चन वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, सिंपल है, मैंने कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं बताया, सिंपल सी चीज़ तुम्हें बताई, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया ऐसा क्यों है। लाइक टोटल डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस, ये फॉर्मूला एवरेज में मैं तुम्हें बताऊंगा, टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम होता है। दिस इज द योर बेसिक फॉर्मूला, D=ST, total distance equal to average speed into total time, right? So this is the thing I have done. Now let's see the next one. एक और फॉर्मूला है, Sam covers a distance with a kilometer and come back with b kilometer. If it takes t hours more to come back, सिर्फ ये चेंज है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या मतलब इसका। अगेन सेम डिस्टेंस है d, अब क्या करता है सैम, इधर को जाता है a किलोमीटर पर आवर से और रिटर्न करता है b किलोमीटर पर आवर से, फाइन। नाउ अब वहां पर क्या होता है, टोटल टाइम दिया होता है, यहां पर सपोज इसको जाने में t1 टाइम लगता है और वापस आने में t2 टाइम लगता है, तो जो t1 माइनस t2 है दैट इज t, इन दोनों का डिफरेंस टाइम है दैट इज t। ठीक है, तो इसको ऐसे td से रिप्रेजेंट कर लो और इसको ऐसे tt से रिप्रेजेंट कर, ठीक है, फॉर्मूला में tt और td, फाइन। नाउ अब देखो क्या करना है, d इक्वल टू a, ये फॉर्मूला है इसके लिए a-b इंटू td। इसका डेरिवेशन तुम्हें खुद से करना है, अगर नहीं समझ में आता है तो किसी लाइव सेशन में हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, फाइन। अब फॉर्मूला याद कैसे करोगे, पहला वाला तो सिंपल, मैं एक्सप्लेनेशन बता दिया और याद रखोगे, लाइक d इक्वल टू ab/a+b, एंड ये चीज अगर तुम्हें याद हो, दिस थिंग इफ यू रिमेंबर, आई हैव टोल्ड यू इन द, कोई मुझे बताएगा मैंने कहाँ पर बताया ये चीज, कैन एनीवन कमेंट, से पहले मैं एक्सप्लेन करूं, ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें कहाँ पर बताया था, अगर किसी को याद हो। दिस फॉर्मूला, लेट मी नो इन द कमेंट, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है मिक्सचर्स में, आई होप यू आर एबल टू रिमेंबर। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे लॉग में। दिस फॉर्मूला will be using in algebra at multiple places, in geometry at multiple places. This is very important. तो I hope you remember this thing. तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें पहले से पता है। तो d इक्वल टू ab/a+b tt, ये टोटल टाइम, टोटल टाइम जब करोगे तो ऐड होगा, जब डिफरेंस करोगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, सिंपल, फॉर्मूला याद हो गया। जब डिफरेंस करोगे td लिखोगे तो यहाँ पर डिफरेंस होगा, जब tt लिखोगे तो यहाँ पर टोटल होगा, ये तुम्हें ऑलरेडी याद है। दिस इज द समथिंग जो हमने लाइक मिक्सचर में यूज की थी, है ना, एंड इससे बहुत ही क्वेश्चन आसानी से सॉल्व जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। आई होप एक्सप्लेनेशन क्लियर है, दोनों का फॉर्मूला कैसे आए हैं, सेकंड का डेरिवेशन तुम्हें खुद से ट्राई करना है, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन। नाउ अगेन these gonna be like little difficult questions, but we gonna solve it very easy. If the difference in the time taken to cover a certain distance at 6 km per hour and 10 km per hour is 30 minutes, find the distance. Simple.
है ना। डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस इक्वल टू डिफरेंस इन द टाइम, डिफरेंस दिया हुआ टाइम में 30 मिनट है, 6 इंटू 10, 6 10 माइनस 6 दैट इज 4 इंटू, डिफरेंस कितना है, टाइम डिफरेंस इज, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया, डी इक्वल टू S1 S2 या फिर लाइक ए बी जो भी यूज कर लो, S1 माइनस S2 इंटू टाइम का डिफरेंस, दिस थिंग आई हैव यूज्ड। तो 6 इंटू 10 एंड टाइम डिफरेंस इज गिवन। अब यहाँ पर ये मिस्टेक मत करना, एवरीथिंग इज किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी आवर में कन्वर्ट करने लिए 60 से मल्टीप्लाई करें। तो 60 60 गेट कैंसिल्ड, 30 अपॉन 4 दैट इज 7.5 किलोमीटर पर आवर इज द, not kilometer per hour, this is distance, 7.5 kilometer is your answer, 7.5 kilometer is your answer. Mahesh goes to his office at 6 kilometer per hour and returns at this speed. If he takes total time, again straightforward question, equal to S1 upon S2, S1 plus S2 into total time. This formula we'll use. So this is 6 into 4 upon 6 plus 4 into 10. ये आवर में ही दिया हुआ, तो दिस इज फाइन। 24 upon 10 into 10, so that is 24 kilometer is your answer. Important thing is guys, do this thing and also try to solve this question using basic methods, ठीक है। that will give you the clarity कि ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं, वो भी करके एक बार सोचना। बट दिस इज ऑल्सो वेरी बेसिक थिंग, है ना, ये बेसिक ही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस निकालना है तो तुम्हें टोटल टाइम इनटू टोटल स्पीड से मल्टीप्लाई, एवरेज स्पीड से मल्टीप्लाई करना होगा। आई एम जस्ट यूजिंग वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इससे बेसिक तो चीजें कॉम्प्लिकेट बनेगी। अगर तुम बुक में देखोगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं कि स्पीड इतने से इंक्रीज कर गई, डिक्रीज कर, है ना, उसमें ऐसे ही बताया होगा ना, स्पीड इतने से इंक्रीज कर रही तो टाइम में इतना चेंज आएगा, वो सारे मेथड बताए होंगे। बट दोज आर, I find that those are difficult method, those are advanced method, but this is basic and simple method, है ना। टोटल डिस्टेंस निकालनी तो क्या करोगे, एवरेज स्पीड और टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, और क्या करोगे ना, सिंपल। अ कार कवर अ डिस्टेंस एट 8 hours and had the speed been increased by 4 kilometer per hour, the time taken would have reduced by 30 minutes. Again same question है, a car cover a distance in 8 hours, had the speed increased, डिस्टेंस निकालना है, had the speed been increased by 4 kilometer. अब अगर स्पीड 4 किलोमीटर से इंक्रीज कर दी गई होती, द टाइम वुड हैव रिड्यूस्ड बाय 30 मिनट, तो टाइम तुम्हारा 30 मिनट से रिड्यूस हो गया होता। तो बेसिकली अगर एक्स स्पीड है और अगर स्पीड एक्स प्लस 4 कर दी गई होती, डिफरेंस स्पीड में 4 है, तो टाइम कितना रिड्यूस हो गया होता, जितना टाइम पहले लगा होगा उसके कितना टाइम कम लगा होता, तो दैट वुड बी कितना हो जाएगा, 30/6। तो यहां से देखो क्या करेंगे, दिस इज x प्लस 4 3 2 दैट इज 8 डी, और ये आ गया। अब लाइक टोटल डिस्टेंस जो कवर करने में टाइम लगा है वो कितना लगा, 8 टाइम लगा ना, 8 आवर। स्पीड क्या थी, इनिशियल स्पीड हमने कितनी ली है, एक्स ली है ना, इनिशियल स्पीड एक्स ली है, एक्स से बढ़कर 4 हुई, तो कितना एक्स हुआ। ये बात समझ में बोलो, ये डी कितने के बराबर होगा, पहले कैसे कवर करो, डी इंटू 8x, 8 आवर एक्स की स्पीड से, तो वही चीज मैंने इक्वेट कर दी, दोनों डी सेम है, तो दिस गेट कैंसिल्ड एंड दिस इज x प्लस 4 इक्वल टू 64। तो x कितना आ गया, 60 आ गया, x तुम्हारा 60 आ गया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, d आ गया, 8 इंटू 60 दैट इज 480 किलोमीटर। क्लियर है, जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दोनों डीज को इक्वेट कर दिया है, नथिंग एल्स। ओके, बस तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन इसमें कैसे अप्लाई करोगे, दैट इज द की। अगर वो तुम एक बार सीख जाओगे, दैट यू कैन लर्न ओनली बाय मल्टीपल, लाइक डूइंग प्रैक्टिस ऑफ मल्टीपल क्वेश्चंस, वो कर लोगे, देन दीज आर वेरी फास्टर मेथड। इफ अ मैन वॉक्स एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ही मिसेस ट्रेन बाय 7 मिनट। अब देखो क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व होगा। हाउएवर इफ ही वॉक्स एट रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेस द स्टेशन 5 मिनट बिफोर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। अब देखो अगर इसको रेगुलर मेथड से सॉल्व करोगे, व्हाट आई फाइंड दोज आर कॉम्प्लिकेट मेथड, जो हम कर रहे हैं दैट इज द वेरी सिंपल। तो इससे देखो क्या होगा डिस्टेंस, अब वो 5 किलोमीटर से ट्रेवल कर रहा है और 6 किलोमीटर से ट्रेवल कर रहा है, अगर इन दो स्पीड से ट्रेवल कर रहा है
तो देखो पहले सपोज वो टी टाइम में पहुंच रहा था, नॉर्मल से जब वो ट्रेवल करेगा टी से पहुंच रहा है, बट अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है तो ट्रेन 7 मिनट से मिस हो जा रही है, तो इट्स डिलेड बाय T+7 टाइम लग रहा है उसे। बट वहीं अगर वो 6 से जाएगा तो 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा, तो T-5 है। तो इन दोनों टाइम में डिफरेंस कितना है? 12 मिनट्स। अगर टाइम का डिफरेंस यूज कर रहे हैं तो स्पीड का डिफरेंस कितना है? 1 है। अब ये तुम्हारी जो टाइम है ये तुम्हारा मिनट में है, इसको अगर लाइक आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज 12,560, so that is distance is 6 kilometers. Is it easy or not? Just one liner question. Okay, if a man drives at a speed of 50 km per hour, he misses our train by 7 minutes. However, if he drives at 60 km per hour, he reaches the station 5 minutes before the departure of that. And same question है, same question. Just let me know the answer in the comment section. 20 slide number 23 के स्लाइड नंबर के साथ मुझे आंसर बताना कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन देखो सेम है, लाइक एवरीथिंग इज सेम। 550 जस्ट वैल्यूज चेंज है, नथिंग एल्स, है ना, जस्ट वैल्यूज 7, बट इवन वैल्यूज आर आल्सो सीम्स टू बी सिमिलर। 60, ठीक है। जस्ट लेट मी नो आंसर इन योर कमेंट सेक्शन मुझे आंसर बताना विद द स्लाइड नंबर, दैट स्लाइड नंबर इज 23 एंड आंसर इज दिस। ओके, Suresh goes to his office at X kilometer per hour and returns at a speed of 2 kilometer per hour. If he takes total time, the distance between his office and home given, तो अब लाइक एक चीज मिस करके दूसरी चीज पूछ ली है, तो मैं डिस्टेंस पता है, दैट इज 6 किलोमीटर एंड स्पीड x एंड 2 एंड टोटल टाइम दैट इज 5 आवर्स, और टोटल के लिए विल यूज टोटल, दैट इज 12 प्लस 6 अगेन। अगर कोई मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है। इफ आई कमिट एनी कैलकुलेशन मिस्टेक जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट आई माइट 5 into 10x, so that is 4x, x equal to 3। पूछा क्या था? स्पीड पूछी थी आई थिंक। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। A train traveled a certain distance. Had the speed been 6 kilometer more, the journey would have taken 4 hours less. If had 6 kilometer less, 6 kilometer per hour less, the journey taken, find the distance. Okay. So train travel a certain distance, सेम डिस्टेंस है ना। हैड द स्पीड बीन 6 किलोमीटर मोर, तो अगर स्पीड तुम्हें 6 किलोमीटर मोर होती, द जर्नी वुड हैव टेकन 4 आवर लेस। इफ 6 किलोमीटर पर इफ हैड जस्ट अ मिनट हैड द स्पीड बीन 6 किलोमीटर मोर, अच्छा तो लाइक एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सपोज एस और टी नॉर्मल। अब बोला कि अगर स्पीड 6 किलोमीटर मोर होती तो टाइम वुड हैव बीन 4 किलोमीटर लेस। इफ स्पीड 6 किलोमीटर लेस, द जर्नी वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर। This is the case, you need to find the distance traveled by the train. तो ये क्वेश्चन देखो लाइक दिस इज द लाइक मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये लाइक इस टाइप में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन यही हो सकता है। इस टाइप के जितने क्वेश्चन होते हैं उनमें सबसे डिफिकल्ट वाला केस ये है। एंड ऑल्सो वी गोना सॉल्व। अब इसके अगर तुम शॉर्टकट भी देखोगे ना, लाइक बहुत जगह तुम्हें शॉर्टकट भी बताया जाएगा, दैट इज ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंथियर, बट वी नॉट गोना यूज एनी शॉर्टकट और एनीथिंग। हम बेसिक मेथड से देखो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। डी अज्यूम करते हैं वो एक्स की स्पीड से और टी टाइम इतना ये ट्रेवल कर रहा था नॉर्मल। तो अब बोला है कि अगर उसकी स्पीड को 6 किलोमीटर बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो जर्नी 4 किलोमीटर लेस लेती है। तो पहले अगर टी ले रही थी, अब 4 किलोमीटर लेस, तो डिफरेंस है ना, तो 4 किलोमीटर लेस मैंने लिख दिया। एंड डिफरेंस यूज करें तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन बताओ बनाते। इफ हैड 6 किलोमीटर लेस, अब अगर स्पीड पहले x थी अब 6 किलोमीटर लेस कर दो, तो जर्नी वुड हैव टेकन 6 आवर मोर। पहले t था अब 6 t+6 ले रहे तो मतलब 6 किलोमीटर मोर, तो अगेन डिफरेंस का गेम है, तो डिफरेंस अगेन है ना, डिफरेंस 6 ही है इन दोनों में। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। दिस इज 2, दिस इज 3, तो दिस इज 2x + 12 इक्वल्स टू 3x - 18 एंड दिस इज x एंड दिस इज कितना 30। x तुम्हारा क्या था? स्पीड था, स्पीड आ गया तुम्हारा 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो, d की वैल्यू आ जाएगी। हमें d निकालना है, टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट वन लाइनर। अगेन अब तुम कहीं पर जाके इसके शॉर्टकट बहुत जगह बताए गए हैं,
वो बहुत ही कॉम्प्लिकेट और लेंदी है, लाइक उसमें कुछ बनाना पड़ता है तुम्हें, अननेसेसरी चीज़ें हैं। जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स, है ना। क्वेश्चन तो कितनी आसानी से सॉल्व होते हैं। तो 30 एंड 36/6 × 4, इसमें भी पुट करोगे तब भी सेम आंसर आएगा, 6 तो डेट इज 720 किलोमीटर। ओके, अगेन अगर कैलकुलेशन मिस्टेक मैं करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एवरी डे एना कवर द डिस्टेंस फ्रॉम होम एंड ऑफिस, तो होम एंड ऑफिस का डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। यूजुअल स्पीड टेकन अ सर्टेन टाइम, तो डी इक्वल टू एस टी, यूजुअल स्पीड, यूजुअल टाइम, यूजुअल डिस्टेंस। When she increases her usual speed by 5 km/h, she takes 10 minutes less than usual. If she reduces 5 km/h, she takes 15 minutes more. Again सेम क्वेश्चन है, मैं दो एग्जाम्पल इसके लिए ताकि क्लैरिटी आ जाए। सेम क्वेश्चन है, तो कैसे करोगे इसमें भी। t इक्वल्स टू, अब नॉर्मल स्पीड x और t लेते हैं, इस लिखने में प्रॉब्लम होता है, xt लेते हैं। अगर x है और इन स्पीड को इंक्रीज कर दो इतने से, तो डिफरेंस 5 ही रहेगा। टी टेक्स 10 मिनट लेस, 10 मिनट लेस, टाइम में डिफरेंस कितना है, पहले टी था, अब टी प्लस t-10 हो गया। टाइम डिफरेंस कितना है, t और t-10, दैट इज 10, so that will become that is 10, and this minute you need to convert into hour because every other unit is in the km/h, so this you need to divide it by 60. Now check the check second statement, second situation where speed, where increases or speed, time decreases, where speed is decreased. So usual speed is x, now speed is decreased by 5, and she takes 15 minutes more than usual. So again similar thing you have to do, difference is 5, and this you need to make 60. Okay, fine. So let's cancel out these things, and 2, 3 is 2x plus 10, 3x minus 15, x 25. Now x तो मैं 25 आ गया, डिस्टेंस निकालनी, वैल्यू पुट कर दो किसी में भी, 25 35 into 10/60, so 5 5 5 12, 300/12, so 5 2 5 25 kilometer is your answer. Again calculation check कर लेना, if there is any calculation mistake just let me know answer in the comment section. So distance is 25 kilometer between home to office. अच्छा ये क्वेश्चन तो तुमने पहले देख लिया था, मैं सॉल्व किया। सो व्हेन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लाइक मुझे पहले बोल देना था, बट व्हेन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन तो पहले सॉल्व कर लेना, फिर आंसर मैच करना, बिकॉज बोथ द क्वेश्चंस आर सेम। ओके, एंड लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन एट दिस मिनट। So this is your homework. Same question है. Had the speed been, let me just check, 6 km/h more, the journey would have taken 4 km. Similar, same question तो नहीं कहीं पर 6. Yeah, I think this is same question. Same question है ना, same question. So just like remove this question. They're the same question. Okay. So these were your like questions that we have done related to D equal to ST. अभी कुछ questions और बचे हैं that we'll do in the second part. And I hope you learn some new methods. Make sure, and again we are doing just with the basic concept. I haven't used any shortcut, any advanced method. Just total distance equal to average speed into time, nothing else. If you are very clear with this concept, if you understand these equation, then you can solve any question and very faster compared to any other approach. Shortcut doesn't work in CAD. Okay? If you are good in concepts, you'll be able to solve question faster as well as you'll be able to understand the question. Okay, so make sure you join the Telegram channel as well as group. इनका link तुम्हें description में मिल जाएगा. And subscribe to this channel. I hope you like the video. So that's it for today. Let's see you in the next session.